Good morning, dear student. How are you all? I hope you all are fine. And how was your study going on? Yes. I hope you all are preparing well for the exam. So, as you know that from the 21st, we have our first PT1 test. So, today we are going to discuss or revise the second chapter, that is what food and health. So now, as you know that we all need what food. आप सबको पता है कि हमें खाने की ज़रूरत होती है. All the living organisms need food. And as you know that from where this food comes, means ये जो खाना है वो कहाँ से आता है. Mostly we are getting this food from two things, from plants and animals. Means the main source of food is water, plant and animal. Means we are getting the food from the plants and animal. We are getting fruits, vegetables from the plants, or the cereals, or the grains, wheat, rice, maize, corn. This all things we are getting from what? We are getting from the plant. So plant is ultimately what the main source of food for us or for all the human being, or for the animal also. Second thing, animal. The animals, some animals are also a part of our food. For example, we are getting eggs, meat, milk, butter, cheese, curd. This all things, this all the food product we are getting from what? From the animals. So that animals already also depends on what? Plants. So ultimately we can say that हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो खाने की जो चीज़ें हैं, खाने की वस्तु है, जो खाने के पदार्थ है, वो अल्टीमेटली हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? आइदर फ्रॉम द प्लांट्स और फ्रॉम द एनिमल्स. तो प्लांट और एनिमल हमारे फूड के मेन क्या हो गए? मेन सोर्स हो गए, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग अवर फूड. एंड वाई वी नीड फूड, कि ये खाना हमें ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इट गिव्स एनर्जी. Because you know that whatever the work we are doing in our life, from a morning to later night or evening, even that when we are sleeping, our body continually work. So for that we need water, energy, and that energy comes from what? That is comes from a food. Second thing, for the growth and development of our body, for we need food. For the protection or fighting against the germs and the bacteria and disease, we need water, the food. This food gives us the strength to fight against the germs. So that's why this food is necessary for us. So as you know that this food comes from water, from the plants and animal. For example, from plants, all these fruits, cereals, this grains, है ना? ये सभी all these things we are getting from the plants. And from the animals, like milk, we are getting milk, egg, meat, butter. This all things we are getting from the animals, and this food product is called the animal food product, and this all known as a plant product, okay, which we use as a food, है ना? यानी हम खाने के रूप में ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, जो आइदर हम प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर एनिमल से प्राप्त करते हैं. नाउ नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. मीन्स फूड में क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट in a food. So this all the certain types of, means all the some certain type of substance are present in the food, that is called a nutrient. क्योंकि उस फूड के अंदर क्या है, कुछ ऐसे substances है, different क्या है, certain substances है, उन substance को अपन क्या कहते हैं? Nutrients. So what is nutrients? Nutrients means the food contains the some certain substances called nutrient. यानी खाने के अंदर, भोजन के अंदर कुछ क्या होता है, कुछ substances होते हैं which play the different role. Means for example, protein, vitamin, fat, mineral, roughage, these all things which have the different role, or which play the different work for our body. So this all nutrient is substance is known as what? Nutrient. So now
the components of a food. So simply we can say that जनरली दिस फूड यानी अपन जो भी खाना खा रहे हैं वो उसके अंदर क्या है, दिस कंटेन दिस 5 बेसिक न्यूट्रिएंट, उसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है या न्यूट्रिएंट होते हैं या सबस्टेंस होते हैं. फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, सेकेंड, थर्ड प्रोटीन, then vitamin and minerals, and last one water and rough phase. These are the 5 important substance, yeah, you can say nutrient present in the food. First one, carbohydrate. Now what is the role of carbohydrate in our body, means ये क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों जरूरी है, why it is important for us, because this carbohydrate gives us water, it gives us what, energy, so that's why it is called energy giving a food. This is called water, energy giving food. Means whatever the energy we needed for performing any kind of activities, any kind of work in our daily life, that energy comes from where? That is comes from the carbohydrate. And what are the source of carbohydrate, means हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिले, means what are the sources of carbohydrate in our diet. So all the grains sources, carbohydrate, the source of carbohydrate is water, wheat, this maize, rice, potato, this all, mostly this all are the main source of a carbohydrate. Wheat, maize, rice, potato, ये क्या है, these are the good source of a carbohydrate, यानी इसमें प्रचुर मात्रा में sufficient amount में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, and this carbohydrate gives us the lot of energy to do work. Okay, now next is the fat. This fats, what is the role of, it is also energy giving food. This also gives energy to us, but this energy is available for us when we are not taking any food. Suppose that we are not taking a food since 2 days, last 2 days, so that time the fat that accumulated or stored in our body, that utilized to release the energy, and that energy is utilized by us for performing many activities. सो यू कैन से दैट ये क्या है, एक तरह से आपका रिजर्व फूड मटेरियल है जो आपको एनर्जी देता है, इनसे स्टोर किया हुआ हमारे बॉडी में, इट इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इन अवर बॉडी. सो जब कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता नहीं है या हम नहीं ले रहे हैं, तो उस समय वो फैट अल्टीमेटली हमारे बॉडी में क्या करता है, इट गिव्स अस अ एनर्जी. सो यू कैन से दैट इज अ रिजर्वर और अ रिजर्व एनर्जी फूड, और यू कैन से दैट स्टोर्ड फॉर एनर्जी और अ कार्बोहाइड्रेट, or it gives energy in the absence of a carbohydrate. Now next, what is the source of fats in our diet, कि हमारे फूड में फैट के क्या सोर्स है. तो फैट हमें कहाँ से मिलता है, ऑल द ऑयली सब्सटेंस, ऑयल, फैट, बटर, दिस ऑल है ना. सोर्स ऑयल, घी, दिस बटर, milk, this all are the source of water, it is source of a fat. Now next is the protein. This protein is generally known as what, a bodybuilding blocks. It is what is the role, it is provide us the building blocks, means it forms muscles, it forms what, muscles, यानी ये अपने बॉडी को बनाता है, मसल्स को डेवलप करता है, मसल्स को बनाता है, एंड इट ऑल्सो रिपेयर ओल्ड एंड वर्न आउट डैमेज पार्ट और सेल, यानी हमारी बॉडी की जो पुरानी सेल्स होती है, डैमेज सेल होती है, उन सेल को वापस रिपेयर करने का या बॉडी पार्ट को, ऑर्गन को रिपेयर करने का जो काम करता है वो करता है प्रोटीन. दैट्स वाई प्रोटीन इज नोन एज व्हाट, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स. नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन,
ये तो क्या था, इसका फंक्शन था, है ना, रोल था हमारे बॉडी में। अब इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स क्या है, दिस मीट, पल्सेस, है ना, पी, दिस सोयाबीन, हाँ, beans, this all are the source of, and soybean is a good source of protein, okay, कि वो उसमें सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और दाल, जितनी भी टाइप की दाल है, तुअर दाल है, मूंग दाल है, उड़द दाल है, चने की दाल है, दिस ऑल आर द वाटर फुल ऑफ प्रोटीन, दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज टेक वाटर। दाल, है ना, इसी तरह से चपाती, दाल विथ राइस अपन खाते हैं। तो दाल ज़्यादा से ज़्यादा आप दाल अपने खाने में रखोगे तो वो आपका एक तरह से क्या है, प्रोटीन का सोर्स है। आपकी बॉडी में वो प्रोटीन की मात्रा को पूरा करता है, यानी उससे आपको प्रोटीन मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स, दिस फूड इज नोन एज वाटर प्रोटेक्टिव फूड। Why it is called protective food? Because it protect us against what? Germs and disease and bacteria। ये हमें बैक्टीरिया से, जर्म्स और डिफरेंट टाइप की डिजीज़ों से बचाता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। एंड मेन सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स आर वाटर, ऑल काइंड्स ऑफ द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, ओके, दिस आर द गुड सोर्स ऑफ, है ना, जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है ना, और दूसरे जो भी फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, दिस आर द गुड सोर्स ऑफ वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स, एंड इट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट वाटर फ्रॉम द डिजीज और अगेंस्ट द डिजीज। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, वाटर एंड मिनरल्स। So beside then this one, this roughage is also a very important nutrient for our body because it helps in the digestion। ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या अच्छा करता है। जितने भी फाइब्रस फ्रूट है या दलिया है, अपन जो दलिया खाते हैं ना, नाश्ते में दलिया लेते हैं अपन ना, तो वो क्या है, ये जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है किसका, रफेज का। और रफेज क्या करता है, इसे हेल्प इन डाइजेशन, है ना, अपने डाइजेशन सिस्टम को, डाइजेस्टिव ट्रैक को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, अच्छा बनाता है। तो क्या होगा, यदि आपका पेट साफ रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, तो वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज़। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम होती है वो क्या है, आपका पेट है। पेट साफ है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम साफ है, अच्छा है, तो हमें किसी भी टाइप की कोई बीमारियाँ नहीं हो सकती। मीन्स देयर विल बी नो चांस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एनी पॉइजनस सब्सटेंस, है ना, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस हमारे पेट में, स्टोमक में स्टोर ही नहीं होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, सब कुछ अपना बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगा, तो क्या होगा, देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ मेल फंक्शनिंग या पुअर फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी पार्ट और डिजीज़। सो रफेज आपकी डाइट में बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ से मिलता है, दलिया है ना, या फिर फाइब्रस पार्ट जैसे एप्पल है, बनाना है, वो फाइब्रस पार्ट या पोर्शन होता है फ्रूट का। ये एक अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, लेकिन इट्स वेरी नेसेसरी टू हैविंग इन अवर डाइट। हमारे डाइट में इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर वाटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ दिस ऑल द न्यूट्रिएंट इन अवर बॉडी। यानी बॉडी के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट आपने सब खाना खाया, इसको लिक्विड फॉर्म में वाटर के थ्रू जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और इट इज़ ऑल्सो मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ओके, it's regulate the body temperature, that's why you should take a lot of water, plenty of water in a day। इसीलिए डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी के सभी जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है या जो रिएक्शन हो रही है वो सब अच्छे से हो और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ दैट डाइट, सपोज दैट हमारे डाइट के अंदर ये सभी न्यूट्रिएंट है, तो that type of diet is called what? A balanced diet। So balanced diet means what? A balanced diet means the type of diet which consists या which contain all these nutrient in a adequate amount or in a sufficient amount। यानी ऐसी डाइट जिसके अंदर क्या हो, ये सभी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, रफेज एक सफिशिएंट अमाउंट में, जितना हमें चाहिए उस अमाउंट में यदि अवेलेबल है, तो दैट डाइट इज कॉल्ड व्हाट? बैलेंस डाइट। मीन्स परफेक्ट डाइट। दैट डाइट कंटेन और
that diet have everything, means this all things present in that diet. So if we are taking the balanced diet, then it's good. So you should always take what a balanced diet. क्यों नहीं, बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे बहुत है ना, खाने पीने में बहुत नाटक करते हैं ना, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, है ना, उनको स्पाइसी और मसालेदार दूसरे खाने, बाहर का खाना अच्छा लगता है लेकिन घर का खाना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। घर के खाने में क्या है, बहुत सारे सब पौष्टिक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, जो आपके बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल है, आपके ग्रो के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके मेंटली डेवलपमेंट के लिए और फिजिकली डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज यूज़ वाटर, यू शुड टेक दिस बैलेंस डाइट, मीन्स योर डाइट शुड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो अब क्या करोगे, आप सभी जो है वो बैलेंस डाइट लोगे, प्रॉपरली दाल भी खाओगे, चपाती भी खाओगे, फल फ्रूट वेजिटेबल भी होगे, दूध भी पियोगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पियोगे। तो ये सब क्या होगा, बैलेंस डाइट होगा, और वो आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? सो आगे से कोई भी खाने पीने में क्या आनाकानी नहीं करेगा, है ना, मम्मी पापा जो कहते हैं वो खाना है, क्योंकि वो आपको अच्छे न्यूट्रिएंट वाला फूड ही खिलाएंगे। बाहर का खाना सिर्फ टेस्टी होता है, बट उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हेल्थी हैबिट्स? हेल्थी हैबिट मीन्स अच्छी आदतें जो हमारे बॉडी को डेवलपमेंट के लिए, हमारे लिए अच्छी रहे। फॉर एग्जांपल बैलेंस डाइट, सो दिस इज़ द गुड हैबिट। बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए, दिस इज़ नेसेसरी फॉर अस, फॉर गुड फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। देन एक्सरसाइज ऑल्सो मेक आवर बॉडी इन अ फिट एंड फाइन एंड इन अ गुड टोन। इट ऑल्सो इंक्रीज आवर ब्लड सर्कुलेशन। टेक अ प्रॉपर रेस्ट, है ना, प्रॉपरली रेस्ट करना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में सोना चाहिए, हाँ, नींद लेनी चाहिए। सो एटलीस्ट प्रॉपरली 8 आवर्स, जो 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। सो दैट इज़ गुड फॉर यू। एटलीस्ट आपको 8 आवर्स तक जो है वो सोना चाहिए। सो विच गिव्स व्हाट, रेस्ट, वो आपके बॉडी को और माइंड को रेस्ट देगा। एंड आफ्टर दैट यू आर फीलिंग फ्रेश, सो यू कैन एबल टू डू अदर वर्क। इफ़ कभी कभार होता है ना कि यदि नींद पूरी नहीं होती है तो फिर ना किसी काम में मन नहीं लगता है ना, पेट में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब क्या है, क्योंकि हमारे बॉडी को एक प्रॉपरली रेस्ट नहीं मिलता है। सो ऑल्सो यू कैन टेक अ प्रॉपर रेस्ट। ओके, रेस्ट का टाइम है तो उस समय आपको रेस्ट करना है, हाँ, एटलीस्ट 8 आवर्स तक आपको सोना चाहिए। एंड दिस बॉडी पोस्चर्स मीन्स आप कैसे खड़े रहते हैं, कैसे चलते हैं, है ना, कैसे बैठते हैं, आपकी बैक स्ट्रेट कैसी है, बिल्कुल, है ना, बैक बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं है। सो दिस बॉडी पोस्चर मीन्स व्हाट, द वे हाउ वी आर स्टैंडिंग एंड हाउ वी आर वॉकिंग और रनिंग। सो दिस स्टैंडिंग ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन या सिटिंग पोजीशन, दिस इज कॉल्ड पोस्चर्स। तो ये पोस्चर्स भी, बॉडी पोस्चर भी आपका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाता है ना। काफ़ी कुछ लोगों को आपने देखा वो ऐसे बैंड करके चलते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर बैड बॉडी पोस्चर्स। सो आपको वो भी नहीं करना है, ठीक है। तो प्रॉपरली रिलैक्स होना है, आपको रेस्ट लेना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है ना, रनिंग है, दिस ऑल आर द गुड एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट, डिजीज। Disease means when we are not feeling well, means the state of body when we are not feeling well or we are feeling discomfortable, means we are not in a comfortable form. So that is called what, this condition is called what, that condition of discomfortable is known as what, disease। यानी कि सपोज अगर आपको ना सर्दी जुकाम है या फीवर है तो आप ना अपने आप को ना अच्छा महसूस नहीं करते ना, यू आर नॉट फील good, you are not feeling well, you are not feeling good, so that state is called what, disease। यानी कोई भी अच्छा नहीं लगता या फिर अपने बॉडी में प्रॉपरली ऑर्गन काम नहीं कर रहे, फंक्शन नहीं कर रहे, तो वी आर सफरिंग फ्रॉम what, disease। so that state of a body is called what, disease। clear? so disease means what,
discomfort, or when we are not feeling well, that state of body is called what? A disease. Now there are the two different type of disease. Yeah, you can say that abnormal condition in which our body does not function properly. It's the abnormal condition in which the body is not function properly, or we are not feeling well. That is called what? A disease. And disease causing microbes or germs is called what? Pathogens. तो disease क्या हो सकती है? disease किसके कारण हो सकती है? या तो बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस, इनके कारण हो सकती है, माइक्रोब्स के कारण हो सकती है. either than what? दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? when our body is not function, our body parts is not functioning properly. suppose that किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है, लीवर फंक्शन नहीं कर रहा है, हार्ट फंक्शन सही से नहीं कर रहा है. So we are suffering from many kind of disease. So now there are the two different type of disease: communicable disease and non-communicable disease. So first one, non-communicable disease. Non-communicable disease means a type of disease which cannot be transferred from a sick person to the healthy person. यानी एक sick person से healthy person को ये disease क्या होती है? पास नहीं होती है. That type of disease is called non-communicable disease. Yeah, the disease which is caused due to the malfunctioning या poor functioning of any body organ. Suppose that हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गन की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के कारण ठीक से फंक्शन नहीं करा, तो वी आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज. दैट टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड व्हाट? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. एंड दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑल्सो ए डिफिशियंसी डिजीज. समटाइम our body is suffering from, yeah, we are suffering from many kind of disease that is due to water, that is due to intaking of less amount of a particular nutrient in our body. suppose that हम विटामिन हमारे बॉडी में कम हो गया, मिनरल्स कम हो गए, कुछ प्रोटीन कम हो गया, कार्बोहाइड्रेट कम हो गया. so in that condition our body suffered from what? The many type of disease. so that type of disease is called a deficiency disease. Deficiency disease means the type of disease which is caused due to the deficiency of a particular or certain type of a nutrient in our body. so many kind of disease that we are discussing in this category. For example, deficiency disease. Okay, I am talking about the deficiency disease which is caused due to deficiency of some nutrient. For example, due to deficiency of iron, means हमारी बॉडी में आयरन की कमी, तो हमें क्या है रोग होगा? वी आर सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया. ड्यू टू विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी वी आर सफरिंग फ्रॉम द स्कर्वी. बी से we are suffering from the beriberi. vitamin B1 night blindness, vitamin D rickets. okay, so these all are the disease caused due to deficiency of some nutrient in our body. so this disease is called what? Deficiency disease. This deficiency disease all are given in your textbook here. This table, this night blindness, beriberi, scurvy, rickets, goiter, anemia. Night blindness due to the vitamin A, deficiency of vitamin A. beriberi, vitamin B1. scurvy, vitamin C. rickets due to deficiency of vitamin D. goiter due to the deficiency of iodine, and anemia due to the deficiency of iron. so this deficiency disease can be cured by taking sufficient amount of this nutrient. यानी ये nutrient जिससे ये हो रही है, जिस कमी से हो रही है, वो nutrient आप अच्छी मात्रा में आप अपनी डाइट में रखते हो या लगातार आप यूज़ खा रहे हो, तो इस डिजीज़ से हम छुटकारा मिल सकता है ना. ये डिजीज़ जो है वो सही हो सकती है. नाउ कम्युनिकेबल डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स अ टाइप ऑफ डिजीज़ विच कैन बी पास फ्रॉम अ सिक पर्सन टू द हेल्थी पर्सन. यानी सपोज दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस
स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और कॉमन फ्लू, सो मेरे से किसी और को भी वो डिजीज़ पास हो सकती है. सो दैट टाइप ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड वाटर communicable disease, means which can pass from a sick person to the healthy person, and this can be passed by water, by the direct contact, by the food, by the air, by the water, or by the coming in a direct contact. Yani we are using some personal things of a victims or a sick person. Suppose उसके क्लोथ्स अपन यूज़ कर रहे हैं, उसका टॉवल यूज़ कर रहे हैं, उसका बेड यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन को हम वो हमें डिजीज़ हो सकती है. ये हवा के थ्रू भी फैल सकती है, जैसे व्हेन वी आर sneezing and coughing during the common cold. So some germs are released into the air and that will pass to the another person, and when he or she inhale, all the germs enter into their some germs enter into their body and start a multiplication, and he or she became suffered from some disease. Water के थ्रू when we are taking the contaminate water or contaminate food, यानी प्रदूषित जल या प्रदूषित पानी या खराब पानी पी रहे हो, हाँ, या फिर दूषित खाना खा रहे हो खराब हुआ, तो उसके कारण भी कुछ जर्म्स हमारी बॉडी में जा सकते हैं और हमें बीमारी हो सकती है. तो उस टाइप की डिजीज़ को कहते हैं क्या, कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक से दूसरे को फैल सकती है. ठीक है. नाउ सम डिजीज़ आर कॉज्ड बाय वाटर. Again, next one table is given here. This is a table. These are the communicable disease which is caused by some germs. Means these diseases are caused by the bacteria, plague, tuberculosis, typhoid, pneumonia, and cholera, pneumonia, typhoid, tuberculosis, and plague. These are the bacterial disease. Viral disease, common cold, polio, measles, chickenpox, flu, and AIDS. Then next, protozoa, malaria, kala ajar, amoebic dysentery, and fungi, infection of skin and athlete food. Okay. Now, other than this one, some insects are also play very important role in the transferring or passing of some disease. For example, malaria. Malaria is caused by the protozoa, but female anopheles play very crucial or important role as a carrier in the spreading of malaria. And dengue is caused by what, by the Aedes mosquito. So दोनों ये मॉस्किटो क्या है, एक तरह से कैरियर है जो डिजीज़ के माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करने का काम करते हैं. ओके. So this play very important role as a carrier, means which carry the microbes for particular disease from one person to the another person. Okay. Now next means how prevention of a communicable disease, means how we can prevent ourselves from this type of a disease. So first one, water, the wash your hands, कि आपको हाथ ना फ्रिक्वेंटली बार बार धोने हैं, जैसे कि अपन कोविड में कर रहे हैं ना, फ्रिक्वेंटली वॉश योर हैंड्स, हाँ, बार बार आपको साबुन से हाथ धोने हैं, ताकि या फिर जब भी आप टॉयलेट जाओ या खाना खाओ या खाना खाने के बाद यू शुड वॉश योर हैंड्स. ओके. कवर फूड मटेरियल, फूड है या वाटर है, दैट शुड बी नीट एंड क्लीन. खाना साफ़ सुथरा होना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए. पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए, या उसको उबाल के बॉईल करके अपन पी सकते हैं. हाँ, क्लीन वाटर होना चाहिए. यूज़ मॉस्किटो रिप्लेंट्स एंड नेट, ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए ताकि आपको मॉस्किटो काटे नहीं. और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन होना चाहिए, इंजेक्शन लगवाने चाहिए, है ना, टीबी के या मिजल्स के या पोलियो वैक्सीनेशन होना चाहिए. ठीक है. वैक्सीनेशन का मतलब होता है इंजेक्शन लगवाना, है ना. मीन्स इट प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सम वीकेंड माइक्रोब्स इनटू अवर बॉडी दैट बूस्ट अवर इम्यूनिटी सिस्टम, यानी वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है. कुछ माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं. ओके. सो दिस आर द सम वेज बाय विच वाटर वी कैन प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम अ डिजीज़, यानी बीमार होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं. ओके. सो you everybody go through this chapter. If you have any problem, then you can ask to me. Okay. And during the evening time, be ready for what a class test. Okay. Thank you. Have a nice day.